Students, today we are going to discuss production possibility frontier, which is also known as production possibility curve. In short, we can say it is PPC, that is production possibility curve. So this is important topic that we are going to discuss in chapter 1, that is introduction part of macroeconomics. Now let us start. The scarce resources have alternative uses, and every society has to determine how to allocate its scarce resources to different goods and services. Now we already discussed that in every economy there is scarce resources. Resources are not abundant. These are scarce. कम होता है, कमी होता है उसका. And uses are unlimited. So how to utilize, how to allocate the resources is one of the basic problem which is solved in the economy. So an allocation of the scarce resources of the economy gives rise to a particular combination of different goods and services. And because of this scarcity, there is different combination of goods and services which is produced in an economy. For example, यदि आप दो गुड्स का आप एग्जांपल ले लीजिए कि गन या फिर ब्रेड, तो हमारे पास जो रिसोर्स है उसमें आपको दो चीज़ को प्रोड्यूस करना है, गन एंड ब्रेड को, जिसका कि डिमांड है. तो कितना गन प्रोड्यूस करेंगे और कितना ब्रेड प्रोड्यूस करेंगे, दिस इज़ वन कॉम्बिनेशन. यदि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ब्रेड को प्रोड्यूस करेंगे तो गन प्रोड्यूस करने के लिए जो है रिसोर्स कम रहेगा, और यदि ज़्यादा गन को प्रोड्यूस करेंगे तो ब्रेड प्रोड्यूस करने के लिए जो है रिसोर्स कम रहेगा, मनी इनकम कम रहेगा. तो इसीलिए आपको याद रखना है कि एक रिसोर्स को यदि आप यूज कर रहे हैं, आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दूसरा रिसोर्स को कम करना पड़ता है. ठीक है, तो वही चीज़ ये बोल रहा है कि एन एलोकेशन ऑफ द स्कार्स रिसोर्स ऑफ द इकोनॉमी गिव्स राइज टू अ पार्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. Given the total amount of resources, it is possible to allocate the resources in many different ways and thereby achieving different mixes of all possible goods and services. So the main motive of any economy is to allocate the resources in best possible manner. What does it mean? Means which gives maximum satisfaction to the economy as per the demand. Now let's see next. The collection of all possible combinations of goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called the production possibility set of the economy. Now production possibility set किसको बोलते हैं? यहाँ production possibility frontier की बात नहीं कर रहे हैं. यहाँ हम लोग जो बात करें क्या है? production possibility set का. इस किसको बोलेंगे? So collection of all possible combinations of goods and services that can be produced. जो goods and service को जो produce किया जाएगा उसका जो combination होगा, उसका जो proportion होगा कि मान लो दो goods को produce किया जा रहा है तो A कितना produce कर रहे हैं, B कितना produce कर रहे हैं, इसका जो combination different combination होता है उसको from a given amount of resources, जो आपके पास resource available है, जो आपके पास में रिसोर्स अवेलेबल है, जो आपके पास में इनकम अवेलेबल है, एंड अ गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, और आपके पास में जो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है, ये दोनों चीज़, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी का हेल्प से ही जो हम लोग कोई गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करते हैं, तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो भी यहाँ पे कंसिडर करना है. तो रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी दोनों को मिल करके जो हम लोग कोई गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. एंड this combination, this all possible combinations is known as production possibility set. ऐसे it is set word को याद रखना है. ये different combination of goods and services को हम लोग बोलते हैं production possibility set. अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग. Consider an economy which can produce corn और cotton. एक इकोनॉमी है जो दो चीज़ को प्रोड्यूस कर सकता है, या तो कॉर्न प्रोड्यूस करेगा या कॉटन प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, या फिर दोनों को जो है दोनों प्रोड्यूस करेगा, कुछ ना कुछ डिवाइड कर लेगा दोनों में. बाय यूजिंग इट्स रिसोर्सेज, गिवन टेबल गिव्स सम ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉर्न एंड कॉटन दैट द इकोनॉमी कैन प्रोड्यूस व्हेन इट्स रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. अब हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि किस तरह से जो है कॉर्न और कॉटन
इसको प्रोड्यूस किया जा सकता है, क्या क्या इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकता है जिस कॉम्बिनेशन को जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है। कॉर्न ज़्यादा रहेगा कि कॉटन ज़्यादा रहेगा, कि कॉटन या कॉर्न दोनों सेम अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा, तो इसको हम लोग जो है देखने वाले हैं। व्हेन इट्स रिसोर्सेस आर फुली यूटिलाइज, जब इसका रिसोर्स जो है इकोनॉमी में जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका पूरा यूटिलाइज हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आधा अधूरा यूज कर रहे हैं। जब जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है, मैक्सिमम रिसोर्स जो है उसको पूरा यूज करने के बाद कितना आप कॉर्न प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, कितना आप कॉटन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इसका डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोग जो है एग्जाम्पल के द्वारा भी देखेंगे। ना ये जो टेबल है इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। तो जो प्रोडक्शन का जो पॉसिबिलिटीज़ है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम से आप पता कर सकते हैं कि ये प्रोडक्शन का जो पॉसिबिलिटीज़ है, जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, उसको यहाँ पर हम लोग दिखाएंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड, कॉर्न एंड कॉटन। नाउ अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को आप देखिए, कॉम्बिनेशन चाहे ए बी सी डी ई, इतना सारा कॉम्बिनेशन यहाँ दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई, 5 कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो कॉम्बिनेशन ए में देखिए कि कॉर्न जो है 0 प्रोड्यूस हो रहा है और कॉटन जो है 10 प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल अमाउंट है, जो टोटल रिसोर्स हमारे पास में, जो टोटल इनकम है, वो सभी से हम लोग कॉटन यदि प्रोड्यूस करें तो 10 कॉटन हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे और कॉर्न 0। यानी कि जो भी हमारे पास में रिसोर्स है, जो भी हमारे पास में जो है वेल्थ है, वो सभी को खर्च कर दे रहे हैं कॉटन को प्रोड्यूस करने में। और कितना कॉटन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? तो 10 कॉटन, 10 कॉटन को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। और यदि आप केवल कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कॉटन 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैक्सिमम कितना कॉर्न प्रोड्यूस कर पा रहे हैं? 4। तो यदि आप सभी वेल्थ को, सभी पैसा को आप खर्च कर दे रहे हैं कॉर्न को प्रोड्यूस करने में, कॉटन को आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, 0 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कितना आप कॉर्न प्रोड्यूस कर सकते हैं जो आपके पास में टोटल वेल्थ है, जो रिसोर्स है उसमें से? तो 4। तो इसका मतलब इससे हम लोग ये समझे कि यदि केवल कॉटन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 10 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, यदि केवल कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 प्रोड्यूस कर सकते हैं। यदि दोनों को प्रोड्यूस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब हम 1 कॉर्न प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 9 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम लोग 2 कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं तो 7 कॉटन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम लोग 3 कॉटन को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो 4 कॉटन को हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब हम लोग 4 कॉर्न को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉटन को 0 प्रोड्यूस करें। तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। अब ये कॉम्बिनेशन जो ये फिक्स नहीं है, ये कॉम्बिनेशन को हम लोग एक एग्जाम्पल की तरह देखे हैं। आप जो है इसका वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जैसे 7 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये जो है हम लोग पे डिपेंड करते हैं, इसलिए ये फिक्स नहीं है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो है किस तरह से वर्क करता है। एक चीज़ और आपको जानना है कि जिस तरह से कॉर्न बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं कि 10, यहाँ 1 जो है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे आपको 2 का हो जा रहा है, फिर आपको 3 का हो जा रहा है, फिर 4 का हो जा रहा है। तो इसके पीछे रीज़न है, ठीक है। तो उसको हम लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको आगे हम बताएंगे। कि हम तो बोले कि यहाँ वैल्यू को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न होता है उस रीज़न को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। तो ये आपको याद रखें, ये याद रखना है आपको। यदि आप कॉर्न को आप इंक्रीज कर रहे हैं, कॉर्न का प्रोडक्शन को आप बढ़ा रहे हैं, तो कॉटन का प्रोडक्शन को आप क्या कर रहे हैं? घटा रहे हैं। तो एक जगह पे इंक्रीज हो रहा है, दूसरा जगह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। एक जगह यदि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा जगह क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इस चीज़ को याद रखना है। यदि यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। अब ध्यान से एक बार देख लीजिए। नेक्स्ट, इफ ऑल द रिसोर्सेस आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉर्न दैट कैन बी प्रोड्यूस इज 4 यूनिट्स। And if all resources are used in the production of cotton, at the most 10 units of cotton can be produced. ये हम बता चुके हैं कि मैक्सिमम 10 कॉटन प्रोड्यूस हो सकता है यदि ऑल द रिसोर्सेज आर यूज ओनली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉटन, एंड मैक्सिमम 4 यूनिट्स ऑफ कॉर्न प्रोड्यूस हो सकते हैं इफ़ वी आर यूटिलाइजिंग और इफ़ वी आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न ओनली। इन दैट केस there can be many other possibilities also. Yes, there are many combinations that we observe from the production possibility set, that how various combinations of two goods are produced, two goods are used for the production of two different goods and services.
Now next one, see, let us observe the figure which illustrates the production possibilities of the economy. अब हम लोग एक देख सकते हैं, एक यहाँ फिगर देखने वाले हैं, वहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट देखें, जो टेबल देखे उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट, उसको वो रिप्रेजेंट किया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज कर्व। ये देखिए, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि इस साइड में जो है आपको, इस साइड में आपको कॉटन और कॉर्न, ये दो चीज़ दिखा रहा है। तो ये हो गया कॉटन, ये जो साइड आपको दिखा रहा है ये कॉटन प्रोडक्शन दिखा रहा है, और ये दिखा रहा है आपको कॉर्न। डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है, सेट ए, बी, सी, डी, ई। ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, इस जगह पे जो है आपको कॉर्न जो है, सॉरी कॉटन जो है इतना प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और कॉर्न कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कॉर्न 0 प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है कॉर्न कितना है, 0 है। तो पूरा कॉटन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन कॉर्न कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 0। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ई पे देखिए, यहाँ पे कॉर्न कितना प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो दूरी है आप देखिए, यानी कि टोटल जो है कॉर्न ही प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे कॉटन कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कॉटन यहाँ पे 0 प्रोड्यूस हो रहा है। जब लोग ई पॉइंट को देखते हैं तो यहाँ पे कॉर्न यहाँ से यहाँ तक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन कॉटन जो है कितना है, 0 है। और इस लोकेशन पे क्या हो रहा है, कॉटन केवल प्रोड्यूस हो रहा है और कॉर्न कितना है, 0 है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है, वो ये है कि ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है, यहाँ पे जो है आपको डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइज कर रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर में यदि आप कोई पॉइंट रख, जैसे एफ पॉइंट यहाँ पे आप रख रहे हैं, ये जो है एफ पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स को पूरा यूज नहीं हो पा रहा है। रिसोर्स जो है अभी अवेलेबल है, इसके ऊपर में अवेलेबल रिसोर्स, लेकिन रिसोर्स को जो है यूज नहीं हो पा, या तो रिसोर्स का बर्बादी हो रहा है, या उसका जो है 100% यूटिलाइजेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यह है अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर यूटिलाइज इसको बोलते हैं। अब मान लो कि यदि इस लाइन से ऊपर में कोई पॉइंट रहेगा, जैसे यहाँ पे जी, तो क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है, ये जो है पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, पॉसिबल इसीलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास में या कि ये इस इकोनॉमी में जो है उतना रिसोर्स है ही नहीं। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो ये कर्व बता रहा है कि इसके अंदर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी है, इसके अंदर में डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है, लेकिन इसके बाहर में जो है बाहर का कॉम्बिनेशन जो है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी में उतना रिसोर्स है ही नहीं। यहाँ पे क्या है, रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स जो है अवेलेबल नहीं है, तो इसीलिए वो जो है पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या देखें, यदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, पीपीसी कर्व पे यदि कोई पॉइंट है, जैसे ये सब पॉइंट हो गया, तो ये जो है आपको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। जो रिसोर्स अवेलेबल है उसका जो है सभी रिसोर्स को यूज किया जा रहा है, या तो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए या फिर कॉर्न प्रोड्यूस करने के लिए। और इसके अंदर में यदि कोई पॉइंट है तो इसका मतलब ये क्या है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्स को जो है यूज नहीं किया जा रहा है। रिसोर्स को जो है बहुत सारे रिसोर्स को या तो यूज नहीं है, बेकार रखा हुआ पड़ा हुआ है, या फिर उसका वेस्ट हो रहा है, उसका पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है रिसोर्स का। और इसके बाहर में यदि पॉइंट है तो ये जो पॉसिबल नहीं है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जो है रिसोर्स से बाहर है, मतलब जो कैपेसिटी है इकोनॉमी का उतना जो है नहीं है, उससे बाहर का। ये मतलब इससे आगे जो है इस लाइन से ऊपर में, लाइन के ऊपर में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना रिसोर्स अवेलेबल नहीं है। इसके अंदर में क्या हुआ, रिसोर्स का जो है आपका
अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मतलब रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। और इस लाइन पे जो है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि रिसोर्स का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा है। सो फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज आर टेकिंग प्लेस। So I hope that you have understood the production possibility curve. So any point on or below the curve represents a combination of cord and cotton that can be produced with the economic resources. The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. ठीक है, this curve is called production possibility frontier or PPC. इस कर्व को हम लोग बोलते हैं production possibility curve. So it shows the combination of two goods that can be produced when the resources of the economy are fully utilized. इस चीज़ को आपको याद रखना है. Point lying below the PPC shows underutilization of the resources or underemployed. So I hope that you have understood the meaning of production possibility curves. This is all about today's class. Thank you.